नमस्कार, आप सबका स्वागत। बाहर मौसम के कारण आज की उपस्थिति थोड़ा सा कमी है और हम आज की जो कार्यक्रम शुरुआत करने के पहले आप सब जानते हैं कि कल कलकत्ता में जो डॉक्टर महाश्वेता देवी जी, जो प्रख्यात बंगला लेखिका है, समाज सेविका, जो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत, ज्ञानपीठ, पद्म विभूषण, नगासाकी अवार्ड और बहुत सारे सम्मानों से उनकी नवाजा गया है। और उनकी निधन मिले, उनकी आत्मा शांति के लिए हम सब 1 मिनट की मौन करेंगे। उसके बाद हमारे कार्यक्रम शुरुआत करेंगे। नमस्कार। साहित्य अकादमी की साहित्य मंच कार्यक्रम श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुझे लगता है कि साहित्य अकादमी का यही एक कार्यक्रम है जो सबसे ज़्यादा बार आयोजित हुआ होगा और इसमें हम लोग एक भाषा के रचना पाठ का कार्यक्रम तो रखते ही हैं, कई भाषाओं के रचनाकारों को बुलाकर उनके पाठ का भी आयोजन करते हैं और साथ ही कभी कभी इसमें विचार विमर्श के कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। आज के कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है अंग्रेजी की कवित्री प्रोफेसर सुसान विश्वनाथन को, हिंदी की कवित्री डॉक्टर रीता सिंह जी को, पंजाबी की कवित्री डॉक्टर वनिका जी को और उर्दू के कवि श्री सैयद जिया अलवी जी को। मैं कवियों से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया मंच पर आएं। मित्रों, सैयद जिया अलवी साहब अभी रास्ते में फंसे हुए हैं और थोड़ी देर में वे हमारे बीच उपस्थित होंगे। इस बीच मैं कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूँगा और इसकी शुरुआत अंग्रेजी की कवित्री प्रोफेसर सुसान विश्वनाथन जी से ही कर रहा हूँ। प्रोफेसर सुसान विश्वनाथन, इनका एक संक्षिप्त परिचय। शी इज अ नोटेड इंग्लिश राइटर एंड स्कॉलर, टीचेज सोशियोलॉजी एट सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स, JNU. She has more than 10 published books to her credit, including edited books. She was co-editor of IIC Quarterly 1995 issue on Kerala and the 1997 issue on Women and the Family. She was the visiting professor to Sasnet program 2014 at Lund University, to University of California, Santa Cruz 2014, and the State University of California, San Diego. She has been fellow of Nehru Memorial and Museum Library, honorary fellow of the Indian Institute of Advanced Studies, Simla, Charles Wallick fellow of Belfast Queen's University, and visiting professor to Mason de Science Homes at to University Paris 13, Freie University Berlin. Professor Susan Vishwanath. नमस्कार। महेश्वरा देवी जी और रोम शर्मिला स्वतंत्रा और हमारे बीच में लेखक जो हैं, नमस्कार। मैं जो पढ़ूंगी वो एक नई किताब में से है। इट इज़ अबाउट आदिशंकरा in relationship to Madana and Madana's wife. I call him Madana
because I am a Malayali, so Mandan really means fool. So I am going to refer to the way in which the battle over their identities is established. Madana had sworn to her that they would not have guests in their inner room, and yet here was the monk who stared at her and read her mind. I have known women like you. Flesh and bodily pleasures are not for the intellect. You have lived many years in the company of your husband, deriving mutual pleasure. He is renowned and has to build his palace of thought. His students are his legacy to the world, not you. She was shocked when he said this. Are you cursing us? It is well known that Madana teaches you the shlokas at night. As you lie on his pillows, he teaches you. There were others like me, and blessed by wisdom, no harm came to them. They are of the air and must remain in the spirit. Such too will be your fate. What is the body but blood and semen? You do not say the word. A lizard called on the wall. The gecko brought news. The heat of unspoken desire lay between them. His cold black eyes were like the lingam at Vishwanath Swami in Kashi. His eyes were lingams. She looked away. Shankara. He was incarnate. She knew he had come to splice them. Madana was a consummate lover, the man wedded to one wife, implicitly grateful for the joy it brought. He had no rancor that he was a stranger to the king, a passing guest who had been royally treated. Every desire was fulfilled. He had no need of sons, and his wife shared her body with none other. She was there solely for her pleasure. They were together, wanderers, happy in each other's company. The elephant god accompanied them from Indraprastha to Kashi, and she had learned the household prayers in his presence. Tomorrow is the great debate. The two men slept in the same hall divided by the oak-wood lattice screen his mother had built for Madana in their hillside village. The conjugal sighs of one, sleeping deeply, the racked body of the ascetic were in stark contrast. Saundarya slept at last, steadily breathing as the moon's light filled the room. She was the one, embroiled in their separate passions, nothing dissolute about either of them. Each of them was razor sharp, free of turmoil, preparing for the next meeting with its turbulence and its pain. The next morning, Shankara looked carefully at Saundarya and spoke steadily without pause. Ubhaya Bharati, there is in you another person. You pretend to be one, and yet that other dominates your thoughts. Samsara. Devi, that is so, and I shall therefore compose a hymn to you once I win the debate. Saundarya laughed as she did easily when confused. He had shown her the way of asceticism, which was pure thought. Feeling was an exuberance. He would leave that to Madana. Adi's own path of fulfillment was as cold as the Himalayas. As in Agni Lingam, where all thought vanishes, he put on his mantle of verse, murmuring, shutting her out. She was disconsolate for a moment, but then shrugged her shoulders. She was busy with the chores of the morning and did them in silence. The cows to be fed, the water filled from the well, the morning decorations, the servants to be instructed. The morning prayers filled the hours. She went from room to room, sanctifying them, preparing the chambers for the greatest of battles. It was not in her nature to take sides. She had been tutored well by Madana in that truth was the ultimate form of worship. There you will find salvation. And what is that? Fearlessness and the stability that comes from order. Her own nature was willful. She questioned him at every turn, and he thought her a better scholar for it. In plenitude was absence. The stigma of being a woman was something that he had taken away from her. In the years that they had spent together, she felt the effervescence of his being as something that she absorbed. Without him, she would be empty. And he looked at her with the same wonder that he had always seen to be her right. She was his goddess. For Shankar, the Devi was an other. Devi, qualified, added to Parmeshwara, made absolute. For Madana, his wife was his equal, and he shared his life with her. Was there a difference? Shankara sighed when Saundarya accosted him with it. The other is but the self, he said urbanely. It is how you see it. Agni Lingam has one side facing the village, another side facing the city. What is the difference? It is one. She bowed and left the room. Her darkness was her greatest beauty. Her skin was smooth as ebony, which matched the stone gods in temples. Her blood flowed strong. She was rarely ill, and her eyes, which were also dark and luminescent, were framed in a clear white, with lashes so thick that they fluttered on her cheek like moth's wings, with eyebrows which arched like warriors' bows over them. She used no perfume, but she was always bathed,
and the incense used in drying her long black hair was sufficient to wrap a whole room in holy scent. The night had gone by in the intensity of pain, for Adi had tossed and turned and suppressed those unwholesome noises from his belly which sounded like doors creaking. His spine hurt, his head was crushed between two hammers, he was also bored. Madana and his wife did not share their betel nuts, though with all else they were very generous. It was not his custom to sleep at night. He preferred the afternoons after a heavy meal. At night he threw himself into composition, memorization and recitation. He had no idea why the couple had given him an adjoining room and thought it was because they wished to guard him. What other reason could there be when so many empty chambers with light still streaming through the crevices in tiles in the early evening lay empty? For security, they said simultaneously, sounding gracious and authoritative at the same time. He could smell her from where she lay, sweat and sandalwood. She had bathed before lying down, and there was a scent of dried roses and tulsi which had been crushed in the oils. He sighed a little, and then remembered in time, before bodily hunger engulfed him, that all women were his mother, their large breasts bursting under their clothes, their thighs straining with lust and dreams for a mutual degradation, everything dissolved into the annihilation of death, as he remembered his mother. She who was the princess of a forgotten clan, doomed to die alone. Adi remembered the Lord at Kashi, the task of uniting and at the same time sowing the world the logic of the many. In the seed lay the difference. He was breathing shallowly. The difficulties of the night reminded him of the crush of pilgrims on a moonlit night. They moved slowly and they were wrapped in prayers and sometimes sobbing. They were quite unlike the crowds in Agni Nigam, where merchants were and travelers jostled one another, eating, laughing, singing. They waited, they hoped, they knew they would never return once this life was done. Liberation was assured to them. Shiva in Kashi was Vishwanath Swami, Lord of Death, and in Tejolingam he was one with Parvati. There was no difference. He was one. In Benares, he became the keeper of the river, giving wealth to farmers. The narrow alleyways of his temple led to the sanctum, which was hot, steaming, and the gift of flowers and milk was so continuous. The Lord bathed all the time, drenched in prayers. The lingam was buried in river sand for fear of enemies, and it would surface another time by another river. It would be revealed. Meanwhile, masons competed to cover the city in lingams and comfort widows. At night, Adi slept at the abode of Vishalakshi. There, others like him also competed in composing verses. It was what they were trained to do, sweet of speech, gentle, languorous, and given to flattery. He too learned that when in Benares, use words as the only raiment. Nothing else existed. And of course, the Buddhists with their stories and their silence were not far away. He received enlightenment in Benares, knowing that here was the melting core of the world, where everything vanished and everything was liberated. In Sarnath, the Buddha had given his first sermon, for he too had found words to be the most inviolable, the most sought after. Regulate your conduct and be an obstacle to no one. So be it. He had learned from the Nestorians equally and had no fault to find with their teaching, though they were perennially hunted. The ancestors who had taught him the root of verbs and the meaning of spurting words and of negation had also blessed him with a love for food. He had travelled on foot, having no money to pay bullock cart owners. His feet were never calloused. Wherever he stayed, he received a gift of white butter from cows, and there were the boats and rivers whose names he recited, along with the 48 rivers of his own land. So I'll move to another section. It was cold in Kedar, and the days merged in the winter blaze of sunlight and snow. Ice crystals fell on his beard, and he removed them one by one to admire their crystal patterns, each so different from the other. He stared into the sky, its emptiness echoing in his heart, as Shunya, the ultimate grace. He was wounded by his memories, and yet he knew that he had left behind a kingdom of verse. Ananda Lahiri, full of the logic of infinity, and Saundarya Lahiri, where the body of the king unfolded its secrets in order to experience the puzzle of the essence of love. Shiva and Shakti looking at each other through a mirror. Madana's wife asked him the question knowing he was innocent and had no experience of lying with a woman. He knew. He had seen the act of coitus many times and was not ashamed. Had he not come from a melon himself, the Garbhapatra? Was not the Vishwanath temple itself a Garbha with its many alleyways leading to the hot womb, where the lingam rested, cold to the touch, a riverine stone? He understood plenitude, and he saw on the faces of those who belonged to each other certain bliss. The path of experience, it could come without the body.
Why had Madana placed him in the adjoining rooms before the competition, so that his back turned to them all night he could absorb the sounds and smells of their coitus? So be it. Mandan, fool, in his native language. So be it. It was an education. He said he needed time to answer, but he was not dissolute. By dreaming and by the chillum, he entered the dead king and answered an unresolvable question. The body is one, inert, a corpse, and yet it dreams. What did it dream? Of the favorite wife. So be it. Color, luminescence, exaltation, sweat, breath, and then death. He had won the battle twice over, and now it was they who were the innocents, not he. And she, the beautiful one, invited him to eat first. The battle was won. They were now three traveling together. He insisted on it. You have seen my home through what I have told you, but there are other places, Mungavika, Sringeri, Kanjivaram. The river flows with different names. They had become his prisoners, blind, quick to respond to his sweetness. He wanted nothing from them, though they offered everything, silks, jewels, even their adored talking parrots. Together we will win many more victories, and Cosmos will be your home. It will be our home. They looked away, their eyes shaded, their love blurred in a shared moment of loss. To be demeaned by a greater love, to be prisoner, and yet to have the grace of being, to hide it. Freedom and equality lost, hierarchy reborn, and as slaves, who were they to contest it? Adi did not exult over his victory. He accepted it as his due. They agreed to whatever he wanted. The woman gave up her recitations. We must sing praises to Devi. She is in you. There is no I. We are one. Accept our salutations. This language has the sweetness of Benares. It is we who are lost. Saundari laughed with her customary composure. It is I who have integrated the Devi in me, Madana said. Adi scratched his beard thoughtfully. His exertions, intellectually and emotionally, had left his body ravaged. You know that I lived in the plains below a hill where the Nestorians lived, and they had a hymn which they ordained priests, Brahmins like us by ancestry, but Nestorian by attachment had. They were duelists facing danger, and they sang at weddings, being a slave, I have found freedom. Adima aita nyan swatantra agunu. So it is with us. We are bonded, knowledge is bonded, and in that bondage, we are to know our freedom. I'll stop here. Thank you very much. धन्यवाद सुशांत विश्वनाथन जी। मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर रीता सिंह जी को। डॉक्टर रीता सिंह प्रतिष्ठित हिंदी कवियत्री और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपके 2 कविता संग्रह तथा 1 संपादित पुस्तक प्रकाशित हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं नजर आती हैं गाहे बगाहे, और आप महिला साहित्यकार संस्था कुल्लू हिमाचल प्रदेश की संस्थापक सदस्य और अध्यक्षा हैं। आप जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कुल्लू कोर्ट तथा हिंदी सलाहकार समिति वित्त मंत्रालय भारत सरकार की सदस्य भी हैं। आपको हिंदी शिखर सम्मान, राष्ट्रीय नारी गौरव सम्मान और हरियाणा साहित्य अकादमी का हिंदी साहित्य सम्मान सहित अनेक पुरस्कार सम्मान प्राप्त हैं। डॉक्टर रीता सिंह। आप सभी को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जैसा कि हमारे बीच एक नाम भी कुछ ऐसा ही था, महाश्वेता जी, एक ऐसा व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व हमारे बीच नहीं रहा। वो भी साहित्य के अतिरिक्त सामाजिक कार्यों में थे। मैं अपनी पहली कविता उनको, क्योंकि उन्होंने जंगल और आदिवासी क्षेत्रों में बहुत कार्य किया है, तो उनको समर्पित करते हुए जंगल के हत्या की साजिश की जा रही है।
इस पहाड़ जंगल पर मैंने गुजरे साल पहले बहुत कुछ लिखा और बहुत कुछ कहा था। इस पहाड़ जंगल पर मैंने गुजरे सालों पहले बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ लिखा था कि हवाओं में बन रहे हैं छेद, कमर झुकाए खड़ा है पहाड़, मगर जंगल तब भी गुनगुनाता था। मगर जंगल तब भी गुनगुनाता था, क्योंकि तब वो था इन बवंडरों से अनजान। पर आज वह अनजान नहीं, भयभीत है। पर आज वो अनजान नहीं, भयभीत है। इसलिए भाषा परिस्थिति के विपरीत कोशिश की है मैंने यह सच्चाई उछाल देने की कि आज जंगल के हत्या की साजिश की जा रही है। आज जंगल के हत्या की साजिश की जा रही है। तभी तो कल रात मैंने जंगल के गुनगुनाने की आवाज नहीं, तभी तो कल रात मैंने जंगल के गुनगुनाने की आवाज नहीं, चीखने और चिघाड़ने की आवाज सुनी थी। 100 हाथियों से चिघाड़ थी वो, और पूरा समाज, पूरी बस्ती और पूरी सभ्यता, मानो पूरा का पूरा जंगल अपनी तरह तरह की उपलब्धियों पर अपनी ही पीठ थपथपाकर सो रहा था। अपनी तरह तरह की उपलब्धियों पर अपनी ही पीठ थपथपाकर सो रहा था, और जंगल देख रहा था अपने ही विस्तार के एक भाग से निकलता धुआं, एक कुएं की गोलाई में उठता धुआं। तभी तो पत्तियों के चटकने की चीखें, तभी तो पत्तियों के चटकने की चीखें, नन्हे पौधों की छटपटाहट, शाखाओं के चटकने का दर्द, सभी को गूंगेपन में ढाल मौन आंधियों का आवृत ओढ़े खामोशी से मानो षड्यंत्रों को नाप तौल रहा था जंगल जो एकटक अपलक रात की शून्यता का गहरापन ओढ़े जड़ता की ठंड में मानव कानून से लेकर सजा तक को माप तौल रहा था जंगल। ना थे आंसू उसके पास, ना थे आंसू उसके पास, ना ही थे कोई अर्थ संदर्भ। पाषाण मूर्ति सी अस्तब्धता ओढ़े अपने को धधकते दहकते भवकते देख रहा था जंगल। देख रही पलके नम गुमसुम सी देख रही थी मैं भी जंगल का ये सारा नाटक, पर अलके मानव के जागृत प्रपंचों को देख रही थी। देख मैं भी रही थी विचित्र से जंगल के मन की उथल पथल, राशि राशि की संवेदनात्मकता। पर तभी अचानक 100 हाथियों की चिघाड़ को आत्मसात कर बढ़ चला जंगल। धीरे धीरे ही सही, शांति स्नेह पथ पर ज्वलन विक्र स्मित बीजों का अंबार लिए बढ़ चला जंगल। अपने संहार की विवलता में, आड़ी तिरछी रेखाओं में, अनुभवी ज्यामिति सा चल पड़ा जंगल सृजन की अबोधता में। पुनः वसुधा के विस्तृत आंगन में प्रकृति सृष्टि का नवरूप धरने चल पड़ा जंगल। बिखरने बीज समर्पण का ममत्व का बढ़ चला जंगल, साथ लिए या आधुनिक सत्य कि उसके हत्या की साजिश की जा रही है, उसके हत्या की साजिश की जा रही है। स्लम एरियाज, झोपड़पट्टियों की अपने को संपूर्ण मानती भिन्न भिनाती बस्ती की वह स्त्री, जिसका न निखरा रूप है न उभरा बदन, पर फिर भी उसका नकियाता जिगर बड़ा बच्चा उसे अपलक देखता रहता है, क्योंकि वो माँ है, वो संपूर्ण है। चीकट बिस्तर पर पसरी, आंखें मिचमिची सी, पलके बोझिल नारी भाग्य का पर्व मुक्ति पर्व लिए गर्वित हो खुश है कि सारी रात उसने ही पति और पुत्र की क्षुधा बुझाई है। राग में सोच लिए खुश है, वह संपूर्ण है। मटमैली गंध लिए मैली बस्ती की वह स्त्री, व्यवस्थाओं का खारापन लिए टूटे दर्पण में मटमैली रंग से पुता, अपना हर अंग निहारती बादलों सा बिखरा अपना जीवन थोड़ा ललक लिए जी लेती है और खुश हो लेती है कि वह संपूर्ण है। डब्बा नुमा बस्ती की वह स्त्री अनगिनत असंगतियों की सत्ता को समेटे, एक आंख से रोती
एक आंख से हंसती, एक आंख से रोती, एक आंख से हंसती, पड़ोसी के सीलन भरे घर से, पड़ोसी के सीलन भरे घर से उठती भात की खुशबू से हो बावली, अलगनी पर टांग अपना धर्म ईमान, अलगनी पर टांग अपना धर्म ईमान, टाट के बंद पट को हटाकर बर्तन के पैंदे से चिपके भात को चुराकर खा लेती है और वो खुश हो जाती है पवित्र भाव से कि वो पुनः सृष्टि का निर्माण करने जा रही है, वह पुनः मां बनने जा रही है। भविष्य के सपनों से हो तरवतर, जीवन की निरंतरता को समर्पित छाजनों के चौबारे पर पसर जाती है गंदी बस्ती की वह स्त्री, गंदी बस्ती की बस्ती। थोड़ा हटते हुए अपने वर्तमान राष्ट्र की ओर मैं ले जाना चाहूंगी। विगत शताब्दियों के गौरवान्वित शाम सवेरे, विगत शताब्दियों के गौरवान्वित शाम सवेरे कुछ याद कर रहे हैं हमें, आज बुला रहे हैं हमें पुनः एक नया इतिहास रचने। युग भाषा काव्य की भाषा भी बोल रही है आज, मिल जाए हम सब अधरों की भाषा, कर्म प्रधान राष्ट्र हो आज, संस्कृति राष्ट्र की मर्यादा होगा। आओ मिलकर आज हम एक नया विश्वास रचें। मौन समाज भी आज बोल रहा है, मौन समाज भी आज बोल रहा है, जाति वर्ण द्विज की बात छोड़ो, पूरब पश्चिम को वसुधैव कुटुंब की से जोड़ो, पूर्ण मानो अपूर्ण मानो सबको एकाकार कर। आओ मिलकर आज हम एक संपूर्ण समाज राष्ट्र को रचें, आओ मिलकर हम संपूर्ण समाज राष्ट्र को रचें। हवाएं उन्मुक्त हो चुकी हैं, उच्छृंख हो चुकी हैं, दिशाएं मौन हैं, नदियां सूख रही हैं उपवन संकट में, देख धरती विचलित है क्योंकि ऋतुओं मौसम भी थकी थकी से दिख रही हैं। आओ मिलकर आज हम एक नया मधुमास रचें, आओ मिलकर हम एक नया मधुमास रचें। बटी धरती बता रही, बटी धरती बता रही मेरे बटते ही कैसे, मेरे बटते ही कैसे बटी मानवता, बटे खेत खलिहान देखते देखते बट गए इंसान, अब और न फैलने देंगे क्रंदन। आओ मिलकर हम बांटें पूरे राष्ट्र में प्रेम का धन, प्रेम का धन। विज्ञान वैभव का ले वरदान हम, विज्ञान वैभव का ले वरदान हम, सर्वे भवन्तु सुखिना का ले मंत्र हम। राष्ट्र एकता का यह स्वच्छंद अर्थ लेकर आओ मिलकर राष्ट्र के नवजातों के लिए हम एक नई धरती आकाश रचें। आओ मिलकर हम करें राष्ट्र का चिंतन, राष्ट्र के लिए वंदन। आओ करें हम मिलकर। वनों में अब नहीं है पक्षियों का कलरव, वनों में अब नहीं है पक्षियों का कलरव, पहाड़ों पर नहीं है अब पगडंडियां, अब नहीं है विस्तृत शाखाओं से गुथे हुए पेड़, अब नहीं है आसमां को छूते सीना ताने वृक्ष। शायद समाज समय के साथ शाखाओं के कटने छटने का दर्द समझ चुका है, देख रहा है साथ साथ समय की दरिया में डूबते उतरते और नियंत्रित बहते विश्वास, संस्कार और आस्था को। और शायद तभी बहुत कुछ, शायद तभी संस्कृति के कसमसाते कांपते वैभव को देख वो पुनः स्त्री में विश्वास करना सीख रहा है, वो पुनः स्त्री में विश्वास करना सीख रहा है। समय है या मैं कुछ ज्यादा पढ़ रही हूँ? एक थोड़ा अलग सा। न जाने कहां से आ जाता है खामोशी लिए फुर्सत सा दिन, न जाने कहां से आ जाता है खामोशी लिए फुर्सत सा दिन, यादों के पोर पोर को नए सिरे से बुनता जुलाहे सा दिन। न जाने किस रास्ते चलकर आ जाता है, न जाने किस रास्ते चलकर आ जाता है, कभी कभी सन्नाटा लिए खाली सा उदास सा दिन, बिना रंग के बरसात के पानी सा दिन, ठंडी अंगीठी से निकलते धुएं सा दिन, धुएं सा दिन। न जाने किस पगडंडी पर चलकर कहां से आ जाता है जिंदगी भर के बही खातों को,
समेटे महाजन की तरह इत्तला करता बेकार सा बेनामी सा है। न जाने कहां से बिना पदचाप क्या बतलाने आ जाता है, लंबे सफर के यात्रियों सा थक थकाया सा है। न जाने कहां से आ जाता है, क्यों होता है ऐसा कभी कभी, क्यों होता है ऐसा कभी कभी। हमारे सभ्य होने के प्रमाण को अनुभवी दर्जी सा काटता छांटता, अनुभवी दर्जी सा काटता छांटता समाज की नावी से निकले आतंक को फैलाता, समाज के नावी से निकले आतंकों को फैलाता। न जाने कहां से आ जाता है कभी कभी जिहादियों सदैव। कभी कभी क्यों होता है ऐसा, हमारी उपलब्धियों को बौनों सा नापता, बच्चों की किलकारियों की तरह हम पर हंसता, सूत्रधार की तरह पर्दा गिराता, बिना दस्तक बिना आहट। न जाने कहां से आ जाता है तेज रोशनी की तरह चुभने वाला दिन। किस रास्ते किस पगडंडी, बिना धूप बिना हवा बिना पानी और बिना दस्तक दिए न जाने कहां से आ जाता है महीनों से खूंटी पर टंगे लटके छाते सदने। धूप में सूख सूख कर पतला पतला सा हुआ पापड़ सा दिन, पत्ते सूखे पत्ते सा दिन। कभी कभी ऐसा भी होता है इबादत के लिए झुके सर को, जीवन के बोझ से दबे कंधे को उठाने, कभी कृष्ण तो कभी बुद्ध तो कभी गांधी की तरह, कभी कृष्ण तो कभी बुद्ध तो कभी गांधी की तरह, बच्चों की उमंग के संग, सूरज की पहली किरण के संग। न जाने कहां से क्यों कब आ जाता है ढेर सी मीठी सौगात लिए, स्वर्णिम उजास लिए, धुला धुला दूध की तरह सफेद उदास नहीं, खिलता हुआ दिन, खिलता हुआ दिन। एक छोटी सी कविता के साथ मैं, आज अगर मैं तुम्हारे चक्रव्यूह को तोड़ना चाहती हूँ उल्लास में, तो वो तुम्हें विद्रोह क्यों लगता है। आज अगर मैं तुम्हारे चक्रव्यूह को तोड़ना चाहती हूँ उल्लास में, तो वो तुम्हें विद्रोह क्यों लगता है। आज अगर मैं तुम्हारे ताल लय सुर पर नहीं करती वसंत का गुणगान, उसे देना चाहती हूँ अपना एक स्वर, तो वो तुम्हें सरगम क्यों नहीं लगता है। आज भी मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में उसी प्रणय आस के साथ खड़ी हूं, पर चौखट पर नहीं चौराहे पर, तो वो तुम्हें युगों से निर्मित मूल्यों के गठबंधन का छेदन क्यों लगता है। बार बार मेरे स्त्रीत्व और अस्तित्व को तौलते रहते हो, न जाने क्या क्या मापदंड रखकर। बार बार मेरे स्त्रीत्व और अस्तित्व को तौलते रहते हो, न जाने क्या क्या मापदंड रखकर। आज अगर पलड़े पर मैंने रख दिया है अपना अटूट आत्मविश्वास, तो वो तुम्हें गांधारी परंपरा का टूटन क्यों लगता है। वो तुम्हें गांधारी परंपरा का टूटन क्यों लगता है। सभी को प्रणाम करते हुए वंदे मातरम। धन्यवाद रीता जी। और मित्रों, मैं हमारे बीच पधारे श्री सैयद जिया अलवी जी का स्वागत करता हूं। आज जिस तरह का मौसम है उसके कारण उनको पहुंचने में थोड़ी देर हुई, और जिस तरह से हम लोग डर रहे थे कि पता नहीं किस तरह की उपस्थिति होगी, तो अभी मैं हॉल देख रहा हूं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कविता प्रेमी इतने सारे लोग हमारे बीच मौजूद हैं। तो मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ सैयद जिया अलवी साहब जी को। आप प्रतिष्ठित उर्दू कवि और सूफी साहित्य के विद्वान हैं। आपकी 5 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें कविता संग्रह और जीवनी की पुस्तक शामिल है। आपकी सूफियाना शायरी के अनेक एल्बम हैं, जिन्हें भारत और पाकिस्तान के प्रतिष्ठित गायकों ने अपना स्वर दिया है। आप तसव्वुफ और मार्फत पर अपने व्याख्यानों के लिए जाने जाते हैं, और आपने विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक सम्मेलनों में सक्रिय भागीदारी की है। श्री अलवी साहब। जैसा कि हमारा तारुफ पेश किया गया, सूफिज़्म अध्यात्म
स्पिरिचुअलिटी, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो हर इंसान के अंदर होती हैं, और बाल्फाज़ दीगर अगर कहें हम तो हर मज़हब की रूह होती है। जिसमें सूफीज़म ना हो, अध्यात्म ना हो, वो मुझे मजहबी मुकम्मल नहीं लगता है, और इससे आप लोग इत्तेफाक भी करेंगे। मेरा शायरी का ज़्यादातर बेस जो है वो सूफीज़म से जुड़ा हुआ है कि इसमें फुल्ली डिवोशनल जज्बात होते हैं, जो किसी जिससे आप अक़ीदत रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो एक समर्पित हो जाते हैं उसकी तरफ। और इसी सिलसिले में मैंने कुछ आपके सामने इस वक्त मैं कुछ अपनी गज़लें पेश करना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए कि मैं ढूंढ लूँ कि मैं क्या आपकी खिदमत में पेश करूँ। एक गज़ल सबसे पहले पेश कर रहा हूँ, और जो भी कलाम पेश करूँगा सब सूफी कलाम होगा। इजाज़त। गज़ल समाज फरमाएं कि मतलब ये अर्ज़ किया है कि पहले खुद को ज़रा बदल के आ, पहले खुद को ज़रा बदल के आ, इश्क के दर पे फिर मचल के आ, इश्क के दर पे फिर मचल के आ, पहले खुद को ज़रा बदल के आ, इश्क के दर पे फिर मचल के आ, तोड़ दुनिया के सारे बंधन को, तोड़ दुनिया के सारे बंधन को, ख्वाहिशें पाँव से मसल के आ, ख्वाहिशें पाँव से मसल के आ, कोरे जाना फना का रास्ता है, कोरे जाना महबूब की गली, कोरे जाना फना का रास्ता है, इस गली में संभल संभल के आ, कोरे जाना फना का रास्ता है, इस गली में संभल संभल के आ। शेर समाप्त करें कि अपने चेहरे पे दोनों हाथों से, अपने चेहरे पे दोनों हाथों से उसकी चौखट की खाक मल के आ, अपने चेहरे पे दोनों हाथों से उसकी चौखट की खाक मल के आ, अपने चेहरे पे दोनों हाथों से उसकी चौखट की खाक मल के आ, और हुस्ने लैला में रब दिखेगा तुझे, हुस्ने लैला में, हुस्ने लैला में रब दिखेगा तुझे, रंगे मजनू में पहले ढल के आ, हुस्ने लैला में रब दिखेगा तुझे, रंगे मजनू में पहले ढल के आ, हुस्ने लैला में रब दिखेगा तुझे, रंगे मजनू में पहले ढल के आ, उसकी राहों में सजदे लाजिम हैं, उसकी राहों में सजदे लाजिम हैं, सर के बल दोस्त तू भी चल के आ, सर के बल दोस्त तू भी चल के आ, और ऐजिया तेरा मुंतजिर है वो, ऐजिया तेरा मुंतजिर है वो, घर के जंजाल से निकल के आ, घर के जंजाल से निकल के आ, पहले खुद को जरा बदल के आ, इश्क के दर पे फिर मचल के आ। और बहुत मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी गज़लें आपकी खिदमत में पेश करूँ जो बहुत मुश्किल, जिसमें अल्फाज ना हो उर्दू के, क्योंकि वैसे उर्दू एक ऐसी ज़बान है कि स्क्रिप्ट पे अगर ना जाया जाए तो हर शख्स समझता है और हर शख्स उसको जानता है। हम लोग सुबह से शाम तक न जाने कितने फ़ारसी के अल्फाज बोलते हैं और हमें ये नहीं मालूम कि ये अल्फाज फ़ारसी के हैं। एक गज़ल और समाप्त फरमाए, मतलब ये क्या है कि आँखों में उम्मीदों का सितारा है कि तुम हो, आँखों में उम्मीदों का सितारा है कि तुम हो, ये सामने एक हुस्न सरापा है
कि तुम हो। आंखों में उम्मीदों का सितारा है कि तुम हो। ये सामने एक हुस्न सरापा है कि तुम हो। और ये शेर है, मिसरा है, कसीदा है कि तुम हो। ये शेर है, मिसरा है, कसीदा है कि तुम हो। या हर्फे सुखन का ये तकाजा है कि तुम हो। या हर्फे सुखन का ये तकाजा है कि तुम हो। और बेसिमत सफर में है अजब वहमे तमन्ना। बेसिमत सफर में है अजब वहमे तमन्ना। जो साया गुजरता है वो लगता है कि तुम हो। जो साया गुजरता है वो लगता है कि तुम हो। बेसिमत सफर में है अजब वहमे तमन्ना। जो साया गुजरता है वो लगता है कि तुम हो। खिलते हुए गुलशन की बहारों में सिमट कर। खिलते हुए गुलशन की बहारों में सिमट कर। ठहरे हुए मंजर का खुलासा है कि तुम हो। ठहरे हुए मंजर का खुलासा है कि तुम हो। शेर समाप्त कीजिएगा कि कल शब मेरी आंखों ने फलक देख के सोचा। कल शब मेरी आंखों ने फलक देख के सोचा। इस चांद में एक चांद सा चेहरा है कि तुम हो। इस चांद में एक चांद सा चेहरा है कि तुम हो। कल शब मेरी आंखों ने फलक देख के सोचा। इस चांद में एक चांद सा चेहरा है कि तुम हो। और क्या दिल के यकीन का भी कोई नाम नहीं है। क्या दिल के यकीन का भी कोई नाम नहीं है। ये कुफ्र है, ईमान है, भरोसा है कि तुम हो। ये कुफ्र है, ईमान है, भरोसा है कि तुम हो। क्या दिल के यकीन का भी कोई नाम नहीं है। ये कुफ्र है, ईमान है, भरोसा है कि तुम हो। और ये कौन मुझे पार लगाने पे तुला है। ये कौन मुझे पार लगाने पे तुला है। मौजों की रवानी है, सफीना है कि तुम हो। मौजों की रवानी है, सफीना है कि तुम हो। ये कौन मुझे पार लगाने पे तुला है। मौजों की रवानी है, सफीना है कि तुम हो। शेर समाज फरमाए सरे मक्का शेर है कि एक बरसरे बाजार तमाशा है कि मैं हूँ। एक बरसरे बाजार तमाशा है कि मैं हूँ। एक बरसरे बाजार तमाशा है कि मैं हूँ। एक रक्स जुनू का ये नजारा है कि तुम हो। एक रक्स जुनू का ये नजारा है कि तुम हो। और एक ये भी तजस्सुस है हमा वक्त जिया को। तजस्सुस कहते हैं तलाश को, हमा वक्त मींस ऑल टाइम। एक ये भी तजस्सुस है हमा वक्त जिया को। ये दिल मेरे सीने में धड़कता है कि तुम हो। एक ये भी तजस्सुस है हमा वक्त जिया को। ये दिल मेरे सीने में धड़कता है कि तुम हो। आंखों में उम्मीदों का सितारा है कि तुम हो। एक गजल और पेश करने की इजाजत होगी। हुजूरे शाह में देखो मुकद्दरों का सफर। हुजूरे शाह में देखो मुकद्दरों का सफर। हुजूरे शाह में देखो मुकद्दरों का सफर। यहीं से होता है जारी गदागरों का सफर। यहीं से होता है जारी गदागरों का सफर। और है किस बुलंदी पे फायज कलंदरों का सफर। है किस बुलंदी पे फायज
कलंदरों का सफर, के सर को हाथ पे रखे है बेसरों का सफर, के सर को हाथ पे रखे है बेसरों का सफर। और ये सोचकर तेरे कूचे में आन बैठा हूँ, ये सोचकर तेरे कूचे में आन बैठा हूँ, यहीं पे आके रुकेगा सितमगरों का सफर, यहीं पे आके रुकेगा सितमगरों का सफर। ये सोचकर तेरे कूचे में आन बैठा हूँ, यहीं पे आके रुकेगा सितमगरों का सफर। और मुनाजरा कहते हैं डिबेट को, जो आपसी डिबेट्स होती हैं, मुनाजरा उसे कहते हैं, लफ्ज़ आया मुनाजरा, उसके मानी में बताता चल रहा हूँ कि चलो किसी की परस्तिश की बात करते हैं, चलो किसी की परस्तिश की बात करते हैं, चलो किसी की परस्तिश की बात करते हैं, चलो के खत्म करें अब मुनाजरों का सफर, चलो के खत्म करें अब मुनाजरों का सफर। और ये तख्त छोड़ के आजा मेरी चटाई पर, ये तख्त छोड़ के, ये तख्त छोड़ के आजा मेरी चटाई पर, कि मैंने देखा है तेरे सिकंदरों का सफर, कि मैंने देखा है तेरे सिकंदरों का सफर। ये तख्त छोड़ के आजा मेरी चटाई पर, कि मैंने देखा है तेरे सिकंदरों का सफर। और बुतों की सारी खुदाई को राज में रखना, बुतों की सारी खुदाई को राज में रखना, कि बंदगी में जरूरी है पत्थरों का सफर, कि बंदगी में जरूरी है। थोड़ा टिपिकल शेर है ये, लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि मैं गया हूँ कई जगहों पर, कि बुतों की सारी खुदाई, बुतों की सारी खुदाई को राज में रखना, बुतों की सारी खुदाई को राज में रखना, कि बंदगी में जरूरी है पत्थरों का सफर। अगर तलाशे गुहर है तो कारे बहर में आ, कारे बहर बीच समंदर, अगर तलाशे गुहर माने मोती, अगर तलाशे गुहर है तो कारे बहर में आ, किनारों से नहीं होता समंदरों का सफर, किनारों से नहीं होता समंदरों का सफर। और लहू लहू दिले मुस्तर को अब संभाल जरा, लहू लहू दिले मुस्तर को अब संभाल जरा, लहू लहू दिले मुस्तर को अब संभाल जरा। ठहर चुका है उन आँखों में खंजरों का सफर, ठहर चुका है उन आँखों में खंजरों का सफर। और निसाबे शेर की मंजिल बहुत है दूर मगर, निसाब एकेडमिक, निसाबे शेर की मंजिल बहुत है दूर मगर, जिया को लेके चला है सुखनवरों का सफर, जिया को लेके चला है सुखनवरों का सफर। निसाबे शेर की मंजिल बहुत है दूर मगर, जिया को लेके चला है सुखनवरों का सफर। मैं ज्यादा वक्त तो नहीं ले रहा हूँ। अच्छा, एक गजल और पेश करना चाहता हूँ कि सूफिज्म में, खासतौर से इस्लामिक सूफिज्म में, जो कृष्णचंद्र जी का जो एक तसव्वुर है, तो अभी मैं एक प्रोग्राम में गया था, अवध के खानकाह में प्रोग्राम था, तो उन्होंने बड़ा अच्छा उन्वान रखा था कि सूफियों के शेरी निगाह खाने में श्री कृष्ण का मुकाम, ये उनका टॉपिक था। तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने गज़ल कही थी। उसमें कुछ काफ़िए जो हैं वो थोड़े टिपिकल हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी गैदरिंग है, आप लोग बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं। एक आखिरी गज़ल और मैं पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ, और ये गज़ल जो है फुल्ली जो है डेडिकेट करता हूँ मैं भगवान श्री कृष्ण के लिए। उनका एक नाम
कान्हा जो कहा जाता है, कान्हा, कान्हा श्याम, मैंने कान्हा लफ्ज इस्तेमाल किया है और उसकी अलामत बना के गज़ल कहने की कोशिश की है। और ये मैं दूसरी मरतबा गज़ल कहीं पढ़ रहा हूँ, या तो उस प्रोग्राम में पढ़ी थी, ये यहाँ पेश कर रहा हूँ। गज़ल का मतलब समाज फरमाए कि वाह क्या शान तेरी है, आहा हा हा कान्हा, वाह क्या शान तेरी है, आहा हा हा कान्हा, तुझ पे हर सिमत से कुर्बान है दिल हा कान्हा, तुझ पे हर सिमत से कुर्बान है दिल हा कान्हा। लोगों को बताता चल रहा हूँ कि पर्शियन स्टाइल में, फारसी में जब किसी लफ्ज के साथ हा लग जाता है तो वो जमा का सीगा बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। फिर वो उसका दिलहा मतलब बहुत से दिल। वाह क्या शान तेरी है, आहा हा हा कान्हा, तुझ पे हर सिमत से कुर्बान है दिल हा कान्हा, और तेरे हर रंग से है सुबह दरख्शां का ज़हूर, तेरे हर रंग से है सुबह दरख्शां का ज़हूर, तुझ में ही पिन्हा सियाह रात है सदहा कान्हा, तुझ में ही पिन्हा सियाह रात है सदहा कान्हा, और तेरे ही जलवे नजर आते हैं बस्ती बस्ती। मिसरा देखिएगा हुजूर, मिसरे सानी, कि तेरे ही जलवे नजर आते हैं बस्ती बस्ती, कभी गोकुल कभी काशी कभी बतहा कान्हा, कभी गोकुल कभी काशी कभी बतहा कान्हा। बतहा काबे का एक नाम है, मक्के का, सॉरी मक्के का एक बतहा नाम है। तेरे ही जलवे नजर आते हैं बस्ती बस्ती, कभी गोकुल कभी काशी कभी बतहा कान्हा, और अपनी ही राह में रखना मेरी हस्ती की खाक, अपनी ही राह में रखना मेरी हस्ती की खाक, अब कोई और न दे देना दुराहा कान्हा, अब कोई और न दे देना दुराहा कान्हा, अपनी ही राह में रखना मेरी हस्ती की खाक, अपनी ही राह में रखना मेरी हस्ती की खाक, अब कोई और न दे देना दुराहा कान्हा, अब कोई और न दे देना दुराहा कान्हा, तेरे हल्के में तेरे चाहने वाले हैं बहुत, तेरे हल्के में तेरे चाहने वाले हैं बहुत, तेरे हल्के में तेरे चाहने वाले हैं बहुत, इस कदर टूट के किसने तुझे चाहा कान्हा, इस कदर टूट के किसने तुझे चाहा कान्हा, और क्यों न मैं तुझ पे करूं जान को सदके सदके, क्यों न मैं तुझ पे करूं जान को सदके सदके, जुस तेरे किसने भला मुझको निभाहा कान्हा, जुस तेरे किसने भला मुझको निभाहा कान्हा, और वस्ल का वक्त गुजरता है बड़ी तेजी से, वस्ल का वक्त गुजरता है बड़ी तेजी से, सामने तेरे ठहरता नहीं लम्हा कान्हा, सामने तेरे ठहरता नहीं लम्हा कान्हा, और तू तो हर हाल से वाकिफ है बता दे इतना, तू तो हर हाल से वाकिफ है बता दे इतना, मुझको दुनिया ने कभी क्यों न सराहा कान्हा, मुझको दुनिया ने कभी क्यों न सराहा कान्हा। और बख्तापुरी अकीदत के साथ पेश कर रहा हूँ, समाप्त करें कि इतना काफी है मुझे नाज दिखाने के लिए, इतना काफी है मुझे नाज दिखाने के लिए, हैजिया शामिले फेहरिस्ते गदाहा कान्हा, हैजिया शामिले फेहरिस्ते गदाहा कान्हा, इतना काफी है मुझे नाज दिखाने के लिए, हैजिया शामिले फेहरिस्ते गदाहा कान्हा, वाह क्या शान तेरी है, आहा हा हा कान्हा, तुझ पे हर सिमत से कुर्बान है दिलहा का।
धन्यवाद अलवी साहब। और मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर वनिता जी को। आप प्रख्यात पंजाबी लेखिका हैं। कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना, यात्रा वृत्त आदि विधाओं में आपकी लगभग 40 पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपकी रचनाओं के विभिन्न भारतीय भाषाओं में विपुल मात्रा में अनुवाद भी हुए हैं और आपने खुद भी हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी से परस्पर अनुवाद का बहुत सारा काम किया है। आपको विभिन्न साहित्यिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक संस्थाओं से आप जुड़ी हुई हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार सहित आपको अनेक पुरस्कार सम्मानों से विभूषित किया गया है। डॉक्टर वनिता जी। हाज़रीन, शुक्रिया। मेरे से पहले आपने बहुत मुख्तलिफ किस्म की कविताएं, उनका आनंद माना है, कहानी का भी। तो बारिशों का मौसम है, आप सब लोग भीग के आए हैं, शायद भीग के ही जाना भी पड़े। तो मैं आपके भीतर भी यहाँ कुछ बारिश की श्रृंखला की कविताएं पंजाबी में ही पढ़ूंगी। मुझे लगता है कि जो हिंदी थोड़ा बहुत भी जानते हैं वो पंजाबी को भी समझ ही जाएंगे। तो हाजिर है पहली कविता, बारिश। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਦਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਰੱਬਾ ਰੱਬਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਦਾਣੇ ਪਾ। शुक्रिया। रब अगे हथ जोड़ अरदासां करदे, कालियां इट्टां काले रोड मींह वरा दे जोरों जोर। किन्ने खुश हुंदे सां, किन्ने खुश हुंदे सां, अज सड़कां गलियां विच होवेगा गोडे गोडे पानी। किन्ने खुश हुंदे सां, अज सड़कां गलियां विच होवेगा गोडे गोडे पानी। स्कूलों छुट्टी मारन लई अगे पावांगे कोई कहानी। स्कूलों छुट्टी मार के बनाउंदे सां कापियां दे वर्कियां दियां कागदां दियां बेड़ियां। तरांदे सां गलियां च कसमैले पानियां विच बेड़ियां। छड़प छड़प करदे खेडदे पानियां विच, मौलदे फिरदे इन्हां पानियां नूं समुंदर जान के। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਰਿਸ਼ 2। ਬਾਰਿਸ਼ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਇਉਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਮਾਨ ਸੈਨਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਮਾਨ ਸੈਨਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਰਮਜ਼ਾਂ ਭਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਬੱਦਲ दूत लगदा, बिजली अपना नृत्य दिखाउंदी। असी भिजदे जान बुझ के, असी भिजदे जान बुझ के, भिजदे फिरदे कदी दरख्तां हेठ, टालियां हेठ, टीना हेठ। दरख्तां टालियां टीना तो टिपदियां बूंदां जिस्म ते पैंदियां। दरख्तां टालियां टीना तो टिपदियां बूंदां जिस्म ते पैंदियां। बारिश संग, बूंदां संग, मीहां संग, कणियां संग, भिजदे चौंदे नुचड़दे, गलियां सड़कां बाग सब गा आउंदे सां। बिना कम्मों भी कोई कम विਉਂਤ लैंदे सां। घरों निकलन दा बहाना ढूंढ लैंदे सां। जिस्मां दे भिज अभिज, कम अकम दी सुरत न हुंदी। कज अकज दी फिक्र न हुंदी। पंछी कलोल करदे, फुल पत्तियां बारिश विच इउं संवाद रचाउंदे। बारिश जदों उदों आउंदी सी। बारिश 3। बारिश फिर भी आउंदी रही। स्कूल जाना नहीं, हुण बस भेजना हुंदा सी। स्कूल जाना नहीं,
ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰੀ ਧਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਦੇ, ਕੇਵਲ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ। ਬੱਦਲ ਦੀ ਗਰਜ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, पूरी पकोड़े तल तल खुआंदे, चाह पिलाਉਂਦੇ। मेरा ख्याल सबके मुंह में पानी आ रहा बारिश में। चाह पियाਉਂਦੇ, सावन भादों दे गीत गाਉਂਦੇ, ढोले टप्पे माइये गाਉਂਦੇ, सबना नू बारिश तो बचाਉਂਦੇ। कदे फिरदे सा बिना छतरियां दे लटबोरे होए, हुण हथ सबना दे छतरियां फड़ाਉਂਦੇ। लास्ट बारिश 4 बारिश फिर भी आउंदी रही, बारिश दे हुंदियां हुण दिसदी टावी टावी छतरी। वधेरे सड़क ते टीन छतरियां ही भजदियां, कारां दौड़दियां जिहड़ियां। वधेरे सड़कां ते हुण टीन छतरियां ही भजदियां, पर बारिश तां फिर भी आउंदी रही। बारिश हुण भी आउंदी है। हुण जद बारिश हुंदी है, सब तो पहला रस्सियां टंगणियां तो लाउंदे हां कपड़े, सुकने पईयां वस्तां हां चुकदे। सड़कां गलियां च बेवजह घुम्मण दी थावें, पर नाले डक्के खोलदे हां कोठे चढ़ के, तड़पैला पाउंदे। जरा कुछ छिट पैन ते ही झट कपड़े बदलदे हां, किते नमूनिया ना हो जावे। ये सब कुछ बारिश करदियां, भिजण तो बचदियां याद आउंदी पहली बारिश। नाल ही कोई सियाणी जी आवाज आंदी, रहना नहीं बस देश बिगाना है, ये संसार कागज की पुरिया, बूंद परे गल जाना है। बारिश उदों भी आउंदी सी, बारिश अज भी आउंदी है। अगां अगां बारिश होर रंग वटाउंदी है, शायर दे बोल भी चेते आउंदे हन, मौसम कब मानता है तहजीब की बंदिशों को। बारिश हुण अपनी मर्जी नाल आउंदी है, कदी धरती नूं सोकियां च मारदी है, कदी डोब डोब जांदी है। ना आवे तां धरती सुक जांदी है, आ जावे जैसे आजकल आ रही है, आ जावे तां परलो ले आउंदी है। बारिश आउंदी रही है, आउंदी रहेगी, पता नहीं होर केड़े केड़े रंग दिखाउंदी रहेगी। शुक्रिया। अब मैं आपको, क्योंकि कुछ हमारे सामने कुछ मेहमान ऐसे बैठे हैं श्रोते जिनको पंजाबी बिल्कुल समझ नहीं आती, उनके लिए मैं एक अंग्रेज़ी में अपनी एक कविता कहूँगी। एक कविता अंग्रेज़ी में कहती हूँ। क्या नारायण सर बैठे हैं? तो एवरीवन्स ओन रीज़न, द शिप हैज़ इट्स reason to sail to the sea. The ship has its reason to sail to the sea from the shore. The waves have their own reason to rise in the sea. The waves have their own reason to rise in the sea. Those living in water have their own reasons. Those living in water have their own reason. The owner of the ship sailing across has his own motive. So do the passengers have affinity, dialogue, coming together, knowing one and other. Everyone has some of it, still their yearnings are different. Everyone has its own reason. शुक्रिया, शुक्रिया। बस बताएं। हाँ, हिंदी की अगर मेरे पास, हाँ पंजाबी में आ रही है आपको समझ ना?
इंग्लिश की ओर पढ़ो। When I began to seek you, when I began to seek you, एक लव पोएम है। Looking at you constantly, I learned philosophies, studied Vedas. Looking at you constantly, I learned philosophies, studied Vedas, but not you in the philosophies. But not you in the philosophies, Vedas or scriptures. When I opened the treatises, Vedas, Puranas, gleaned through, understood, verified, they seemed insignificant. They seemed insignificant before you. When I began to look for you, when I began to look for you, gauging the extent of horizons, every moment, every new mysteries, every moment your new mysteries, every moment your new beauties, looking for your ever new forms, you seemed to be a new perspective, indeed a new aspect. Looking at you constantly, I learned philosophies, studies, Vedas, but not you in the philosophies. Shukriya. Shukriya. धन्यवाद मित्रों और धन्यवाद वनिता जी। मित्रों, वस्ल का वक्त गुजरता है बड़ी तेजी से, तो ये कविता का सुनने का समय भी जो है इतनी तेजी से गुजर गया, लगा ही नहीं कि 1 घंटा कब हो गया। और उसमें भी जब बाहर बारिश हो रही है, लोग बाहर बारिश में भीग रहे हैं, और हम यहाँ इस हॉल में भी हमें वनिता जी ने बारिश में भिगो दिया। इसके लिए शुक्रिया वनिता जी, और आप सभी मित्रों को, सुशांत विश्वनाथन जी को, रीता सिंह जी को, अलवी साहब को, आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे आमंत्रण पर आए और इतनी अच्छी शाम रही है। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों में मैं देख रहा हूँ कि जय भाग्य लक्ष्मी जी हैं, विज्ञान व्रत जी, रवेल सिंह जी, एजे थॉमस जी, मोहन हिमथानी जी, और भी बहुत से प्रबुद्ध श्रोता हमारे बीच मौजूद हैं। और जिस तरह का सुबह से ही समा था वर्षा का, हमें लग नहीं रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग हमारा साथ देंगे। इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग आमंत्रित हैं चाय और जलपान के लिए। आभार।